بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کامران خان اور آپ دیکھ رہے ہیں MZS TV یوٹیوب چینل۔ آج کی ہماری جو ویڈیو ہے وہ بلو برڈ سٹی کے بارے میں 4 سوالات ہیں، اور یہ 4 سوالات ہمیں بھیجے ہیں ایک انگلینڈ سے ہمارے سبسکرائبر ہیں اور ایک امریکہ سے ہمارے سبسکرائبر ہیں۔ دو سوال بالترتیب ان دونوں دوستوں نے کیے ہیں، اور ان دونوں دوستوں کے سوالات کے جوابات آج ہم ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اعجاز صاحب کے 2 سوالوں کے جواب دیتے ہیں، جو فلوریڈا میں امریکہ کے ایک ریاست فلوریڈا میں ہوتے ہیں، اور فلوریڈا کے شہر میامی سے انہوں نے ہم سے یہ پوچھا ہے کہ بلو برڈ سٹی کی اوپن فائل اور کلوز فائل میں فرق کیا ہے، اور دوسرا سوال انہوں نے پوچھا ہے کہ بلو برڈ سٹی کی جو اس وقت ہم اس فائل پہ قسطیں بھر رہے ہیں، کیا یہ قسطیں جو ہیں یہ ڈیولپمنٹ چارجز کے سمیت ہیں یا پھر ڈیولپمنٹ چارجز اس سے الگ ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم ان کے پہلے سوال کا جواب دیتے ہیں کہ اوپن فائل اور ٹرانسفریبل، کلوز بھی کہتے ہیں لیکن یہ ٹرانسفریبل فائل میں فرق کیا ہے۔ جو اوپن فائلز ہیں وہ ایسی فائلز ہیں جیسے آپ نے بلو برڈ سٹی سے پہلے کچھ فائلیں لی اور ان کے اوپر 100 روپے کا کچھ نوٹ لگا ہوا تھا اور وہ فل نہیں تھی، ایسی فائلیں موجود تھیں۔ وہ فائلیں آپ نے 70,000 80,000 1,35,000 جس طرح سے بھی لی وہ لی، اور وہ اس کے ساتھ مارکیٹ میں ٹریڈ ہوئی، وہ کسی کے نام نہیں تھی، کچھ انویسٹرز نے خریدی، اور انویسٹرز نے سب سے پہلے ڈیلرز نے خریدی، اس کے بعد انویسٹرز نے خریدی، اور پھر جو ڈیلرز نے دوبارہ ان فائلز کو اینڈ یوزر تک پہنچایا۔ جب ان فائل کو ڈیلر نے اینڈ یوزر تک پہنچایا تو اینڈ یوزرز نے وہ فائل خرید کر باقاعدہ فائل جا کر بلو برڈ سٹی کے آفس میں دی، اور وہاں پہ وہ فائل اپنے نام کروا لی، اور اپنے نام کروانے کے بعد اس فائل کی قسطیں بھرنا شروع ہو گئے۔ وہ لوگ جنہوں نے فائل اپنے نام کروا لی، وہ فائل ان لوگوں کے نام باقاعدہ سے مطلب ان لوگوں کے نام ٹرانسفر ہو گئی، اور اس کے بعد وہ فائل اوپن نہیں رہی، اوپن ٹریڈ کے لیے نہیں رہی، بلکہ وہ ٹرانسفریبل فائل ہو گئی، جسے آپ کلوز فائل کے نام سے آپ نے مجھ سے پوچھا ہے کہ اوپن فائل اور کلوز فائل بلو برڈ سٹی کی، جیسے یہ کلوز فائل اصل میں ٹرانسفریبل فائل ہوتی ہے۔ اوپن فائل صرف ٹریڈ کے لیے ہوتی ہے، یہ انویسٹرز کے پاس جاتی ہے، ڈیلرز کے پاس جاتی ہے، اور اس پہ صرف ٹریڈ کیا جاتا ہے، کچھ عرصے تک اس کے پر ٹریڈ ہوتا ہے، اور ٹریڈ کے بعد یہ جو ہے اوپن فائلز جو ہیں پھر اینڈ یوزر کے نام ٹرانسفر ہو جاتی ہیں، انویسٹر سیل آؤٹ کر دیتا ہے، ڈیلرز کے تھرو وہ اینڈ یوزر تک پہنچتی ہیں، اور وہ لوگ جو اس پروجیکٹ میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں، جیسے بلو برڈ سٹی میں انٹرسٹڈ ہیں وہ لوگ جو یہاں پہ کہ ہمارا پلاٹ ہو، ان لوگوں نے وہ فائلز اپنے نام کروا لی، اور نام کروا کے اب ان کی قسطیں بھر رہے ہیں۔ یہ فائلز اب ٹرانسفریبل ہو چکی ہیں، ایک بندے کے نام ٹرانسفر ہے، اور اب وہ کوئی بھی دوسرا بندہ اگر ان سے خریدے گا تو یہ ان کے نام سے ہوگی، یہ اپنے نام کی ایک بلو برڈ سٹی کے آفس جائیں گے اور وہاں جا کے باقاعدہ سے بیان دیں گے، جیسے تحصیل میں یا بیریئر ٹاؤن میں ہوتا ہے، اور اس کے بعد یہ اگلے بندے کے نام پہ ٹرانسفر ہوگا۔ یہ ہے ٹرانسفریبل فائل۔ اور اوپن فائل اور ٹرانسفریبل فائل میں فرق کیا ہے؟ اوپن فائل صرف مارکیٹ میں ٹریڈ کرنے کے لیے فائل ہوتی ہے، یہ کچھ عرصہ تک اوپن رکھی جا سکتی ہے، یہ صرف اس عرصہ تک اوپن رکھی جا سکتی ہے جس عرصہ تک آپ اس سے منافع کما کے اگلے اینڈ یوزر تک نہیں پہنچا سکتے۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ بلو برڈ سٹی کے پلاٹ پڑے ہوئے ہیں، ہم جب ان سے رابطہ کرتے ہیں وہ ہمیں فائلز لا کے دکھاتے ہیں، تو اصل میں یہ اوپن فائلز ہوتی ہیں، اور یہ اوپن فائلز اس وقت صرف 10% اماؤنٹ ان میں جمع ہوتی ہے، یا 8% جمع ہوتی ہے، یا پھر 15% ہوتی ہے، یا 20% جمع ہوتی ہے۔ یہ اوپن فائل ٹرانسفریبل فائل میں اس وقت ٹرانسفر ہوتی ہے جب اس فائل کو آپ اپنے نام پہ ٹرانسفر کروا لیتے ہیں، اور اس کے بعد باقاعدہ سے اس فائل کے اوپر بلو برڈ سٹی کے فائل کے اوپر جیسے لکھا ہوا ہے کاسٹ آف لینڈ، آپ بھرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب یہ کاسٹ آف لینڈ آپ کے
प्लॉट में जाना शुरू हो जाती है तो ये फाइल ख़त्म हो जाती है और ये प्लॉट बन जाता है। अगर ये इसी तरह से 8% 10% की ओपन फाइल बुक आपके पास पड़ी हुई है तो ये किसी सूरत आपका प्लॉट नहीं है, बल्कि ये मार्केट में ओपन ट्रेड के लिए है। और कैपिटल स्मार्ट सिटी ने तो ऐसी सारी फाइलें जो 10% बुक हुई थी वो कैंसिल कर मारी है। लेकिन अब ब्लू वर्ल्ड सिटी का टाइम है कि देखते हैं वो कब ये जो ओपन फाइल्स हैं इन्हें कब करेंगे, कैंसिल करेंगे। अभी तक उन लोगों ने ऐलान नहीं किया। अब अगली बात करते हैं हम कि जो ब्लू वर्ल्ड सिटी में इस वक्त आप पैसे भर रहे हैं अपने प्लॉट में, आप इंस्टॉलमेंट्स जमा करवा रहे हैं या कोई ऑफर अवेल करके इकट्ठे पैसे जमा करवा रहे हैं, जैसे 50% अभी ओवरसीज में एक ऑफर है वो जमा करवा रहे हैं, तो क्या ऐसे इसमें डेवलपमेंट चार्जेस मौजूद हैं? नहीं, इसमें डेवलपमेंट चार्जेस मौजूद नहीं। इसमें आपने अपनी फाइल के ऊपर देखा होगा बाकायदा से लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ लैंड, यानी कि ज़मीन की जो कास्ट है वो आप जमा करवा रहे हैं। ये जिस वक्त ज़मीन की कास्ट मुकम्मल होगी तो उसके बाद ब्लू वर्ल्ड सिटी अपने एक डेवलपमेंट चार्जेस का बाकायदा से ऐलान करेगी और वो डेवलपमेंट चार्जेस आपको इंस्टॉलमेंट पर या फिर कोई ऑफर अगर आपको मिलती है तो आपको कैश भी जमा करवाने होंगे। अगला सवाल जो मेरे इस सब्सक्राइबर का सवाल नहीं है, सवात से शाहीन बेगम है, उनका सवाल है। वो पूछती हैं कि ब्लू वर्ल्ड सिटी के डेवलपमेंट चार्जेस पर मरला कितने हैं? देखें, ब्लू वर्ल्ड सिटी के डेवलपमेंट चार्जेस पर मरला अभी तक ब्लू वर्ल्ड सिटी ने खुद इसके बारे में ऐलान नहीं किया और ना ही डेवलपमेंट चार्जेस इकट्ठा करना शुरू किया। अलबत्ता मार्केट में कुछ सरगुज़श्त हो रही है, बातें हो रही हैं और सरगोशियाँ हो रही है। मुख्तलिफ डीलर्स हजरात और मुख्तलिफ जो इन्वेस्टर्स हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी के और एंड यूज़र्स हैं वो भी मुख्तलिफ औकात में बातचीत करते हैं। जैसा कि 1.5 लाख रुपया मरला कैपिटल स्मार्ट सिटी का अनाउंस हुआ है और यूँ महसूस हो रहा है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी के डेवलपमेंट चार्जेस भी 50,000 रुपये से लेके लाख रुपए के राउंड अबाउट होंगे। लेकिन ये अभी एक अंदाज़ा है, ये कोई ट्रू स्टेटमेंट या फिर सोसाइटी की तरफ से आने वाले डेवलपमेंट चार्जेस जो डिक्लेयर हुए हैं वो नहीं है। अगला हमारा सवाल है जो लंदन से हैं, लंदन से हमारे सब्सक्राइबर हैं। उन्होंने हमसे ये सवाल किया और उन्होंने हमसे पूछा कि हमें ये बताइए कि ब्लू वर्ल्ड सिटी के पास कितनी ज़मीन मौजूद है। सर, आप लंदन से नदीम साहब हमसे पूछते हैं कि ब्लू वर्ल्ड सिटी के पास कितनी ज़मीन मौजूद है। ब्लू वर्ल्ड सिटी के पास जो ज़मीन मौजूद है उसके बारे में मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ बातें बाहर आई हैं। हमें ब्लू वर्ल्ड सिटी के जो लीगल एडवाइज़र हैं उनके क्लोज ज़राए ने हमें ये बताया कि ब्लू वर्ल्ड सिटी के साथ 35,000 कनाल ज़मीन मौजूद है और मार्केट में जो आज़ाद ज़राए मौजूद हैं वो जो मार्केट में गैर जानबदार लोग हैं, एक तो मार्केट के अंदर वो बैठे हुए हैं कि जो मुख्तलिफ सोसाइटीज़ का काम करते हैं और वो ब्लू वर्ल्ड सिटी के खिलाफ या किसी दूसरी सिटी के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। लेकिन एक वो लोग हैं जो आज़ाद ज़राए हैं, वो आज़ाद राय रखते हैं, वो अपनी साफ और शफाफ राय रखते हैं। उन लोगों के कहने के मुताबिक ब्लू वर्ल्ड सिटी के पास अभी 35,000 कनाल लगभग ज़मीन मौजूद है, जबकि मजीद 70,000 कनाल के उन्होंने एग्रीमेंट्स किए हुए हैं। जबकि हमने बोल न्यूज़ के एक प्रोग्राम में उसामा गाजी के साथ एक इंटरव्यू देखा, साहद नज़ीर जो सीईओ हैं और वो सीईओ ब्लू वर्ल्ड सिटी हैं, उनका ये कहना था कि उनके पास 70,000 कनाल अराजी मौजूद है, जबकि मजीद 50 से 70,000 कनाल अराजी के उन्होंने एग्रीमेंट्स भी किए हुए हैं। ये साहद नज़ीर साहब की बात थी। अब ब्लू वर्ल्ड सिटी के पास ज़मीन कितनी मौजूद है ये एक आम पहलू नहीं है, क्योंकि ब्लू वर्ल्ड सिटी के 2 ब्लॉक हैं, ओवरसीज ब्लॉक है और दूसरा ब्लॉक जो है वो जनरल ब्लॉक है। दोनों में बड़ी तेज़ी से डेवलपमेंट लगी हुई है, दोनों में लोगों को प्लॉट मिलेंगे। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपको भी ब्लू वर्ल्ड सिटी में प्लॉट मिले तो आपने जो फाइल दी हुई है उस फाइल को ओपन ना रखें बल्कि अपने नाम पे ट्रांसफ़र करें और फाइल को अपने नाम पे ट्रांसफ़र करने के बाद इसकी बाकायदा से किस्तें जमा करवाएं ताकि आपको भी ब्लू वर्ल्ड सिटी में प्लॉट मिले। अब अगला सवाल हम करने जा रहे हैं कि ब्लू वर्ल्ड सिटी, ये जो सवाल है ये इंतहाई अहम है। नॉर्वे से एक साहद साहब है, वो मुझसे सवाल पूछते हैं नॉर्वे से कि ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद
ब्लू वर्ल्ड सिटी की जितनी भी मार्केटिंग है, एडवर्टाइजमेंट है, वो है इस्लामाबाद के बारे में। लेकिन आप जब भी कोई वीडियो बनाते हैं तो आप कहते हैं कि ब्लू वर्ल्ड सिटी चक्री रोड रावलपिंडी। तो असल हकीकत क्या है, ज़रा आप हमें ये बताएं कि ब्लू वर्ल्ड सिटी की असल लोकेशन इस्लामाबाद के किसी सेक्टर में है या फिर इस्लामाबाद से दूर दराज किसी रावलपिंडी शहर के किसी इलाके में। तो साहब भाई, हम आपको नार्वे से पहले तो खुशामदीद कहते हैं, और हमारा ये चैनल देखते हैं, हमें सब्सक्राइब किया है, इसका बहुत शुक्रिया। और अगली जो बात है सर, जहाँ तक आपने बात की है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी कहाँ पे है, तो ब्लू वर्ल्ड सिटी किसी सूरत इस्लामाबाद के किसी सेक्टर में मौजूद नहीं है। ब्लू वर्ल्ड सिटी आप इस्लामाबाद मोटरवे से जिस वक्त आप लाहौर की तरफ गाड़ी ड्राइव करना शुरू करते हैं तो तकरीबन इस्लामाबाद एयरपोर्ट से 40 किलोमीटर की मुसाफत से 40 से 45 किलोमीटर की मुसाफत पे आपको एक जगह मिलती है, चक्री इंटरचेंज। जब आप चक्री इंटरचेंज से एग्जिट लेते हैं तो 2 से 3 किलोमीटर के फासले पर पहले ब्लू वर्ल्ड सिटी आती है, और आपके लिए ब्लू वर्ल्ड सिटी का ये करीब तरीन रास्ता भी है ब्लू वर्ल्ड सिटी पहुंचने का। और दूसरी तरफ से अगर आप रावलपिंडी शहर की तरफ से ब्लू वर्ल्ड सिटी आने की कोशिश करते हैं तो उसका मैं आपको बताऊं कि आप सदर पहुंचेंगे, सदर से आप चक्री रोड पे आएंगे, और चक्री रोड से आप लगभग सदर से 50 किलोमीटर के वाई पे आप चक्री रोड पे आएंगे तो बिल्कुल चक्री इंटरचेंज के करीब आपको ब्लू वर्ल्ड सिटी मिलेगी। ब्लू वर्ल्ड सिटी असल में आपने जिस तरह सवाल में पूछा कि क्या इसका एनओसी सीडीए देगा, नहीं, बिल्कुल सीडीए नहीं देगा। ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद इसका नाम है, असल में इसकी लोकेशन जो है वो रावलपिंडी है, और इसका जो इसका एनओसी है वो आरडीए रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर है, जो इन प्रोसेस है। और इंशाल्लाह यूं महसूस हो रहा है कि जितने बड़े पैमाने पर ब्लू वर्ल्ड सिटी डेवलपमेंट कर रही है और जितने नेक नियति से ये काम कर रहे हैं, खुलूस दिल से ये इंतज़ामिया काम कर रही है, इंशाल्लाह बहुत जल्दी से एनओसी भी मिलेगा। ये हैं आप वो दोस्त जिन्होंने हमें कमेंट भेजे, हमारी वीडियोस को गौर से सुनते हैं और उन पे आप सवाल करते हैं, ऐसे सवाल करते हैं कि जिनके ऊपर हमें वीडियो बनाने के लिए हम मजबूर हो जाते हैं। मैं अपने दूसरे जो सब्सक्राइबर्स हैं और जो व्यूवर्स हैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि आपके भी ऐसे ही सवालात अगर हों तो इंशाल्लाह हम डेली एक वीडियो अपलोड कर सकते हैं, और ये काफ़ी मालूमाती सवाल हैं और इनके जवाब से उम्मीद है कि आप सब लोगों के ज़हन में वो इन्फॉर्मेशन पहुंच गई होगी जो शकूक व शुबात आपके पास ब्लू वर्ल्ड सिटी के हैं या आपके दिमाग में महसूस हैं। इसी के साथ मुझे कामरान खान को इजाज़त दीजिए, और तमाम वीडियो सुनने वाले लोगों से गुजारिश है और देखने वाले लोगों से कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि बर वक्त हमारी वीडियो आप तक पहुँचे। खुदा हाफिज़।